like this. So these are और गाड़ी अगर कोई गुजरती है पोर्ट के आगे से तो एक बिट हाई हो जाती है. So in that case, any change on the port B will set an interrupt. Then you can go and check which bit is in your interrupt service routine. You can check कि कौन सी पोर्ट की बिट 0 या बिट 7 में किसके ऊपर इंटरप्ट आई थी, and how can I handle that. So that's a good way. It's basically इन सारी इनपुट्स को आर करके एक गेट पे दे दिया. आर नहीं किया हुआ, बल्कि पुरानी से जो भी पुरानी इनपुट है अगर उससे चेंज आती है तो ये इंटरप्ट आती है. वेरी इंटरेस्टिंग. फर्ज करें सारी अगर बिट बिट पे 1 1 1 1 1 है, अगर कोई बिट 0 हो जाती है, 1 1 1 0 हो जाएगी तो इंटरप्ट आ जाएगी. तो चेंज ऑन इंटरप्ट, sorry, interrupt on change on interrupt नहीं, interrupt on change. So any change will cause an interrupt. So that's useful for your project or so these are different parts of this. Timer 0, interrupt flag, and so on. So there is a full blown example we given below, which basically based on timer interrupt. And you can see here on page 4 that whenever the timer interrupt would occur, it will go into the interrupt service routine. So how do you set the timer interrupt? That is the starting thing in the main. We in Ansel B, then we do tris B equal to 0 so that it is an output port. So latch B 0 means the output port is initialized as 0 0 0. We load some timer values, timer 0L and 8-bit timer con, and then we global interrupt bit equal to 1. So we launch our interrupt and we do timer 0 interrupt enable bit equal to 1. So that causes the interrupt to start. So as soon as the interrupt come, we come here and we flip the latch. So the LED turn on and off, and then we do the timer bit equal to 0 again, and we reload the timer. So with the value, same value. Note that timer सर yeah, हम लोग ये एक इंटरप्ट फंक्शन बनाया है, तो हम जो इंटरप्ट फंक्शन है ये तो हम लोग कोई कॉल भी कर रहे हैं अपने मेन में, तो ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है? इंटरप्ट को हम कॉल नहीं करते ना. इंटरप्ट जो है जब टाइमर ओवरफ्लो होता है, यही तो हमने सारे लेक्चर्स में पढ़ा था, शायद आप लेक्चर्स में नहीं आए. तो जब इंटरप्ट कॉल नहीं करते तो इंटरप्ट बेसिकली क्या होती है, मैं थोड़ा सा चलें ये बता देता हूँ दोबारा, जो लोग लेक्चर अटेंड नहीं करते रहे, कि इधर करना याद जरा. व्हाट आर इंटरप्ट्स? Interrupts basically like I gave an example in the lecture that interrupts are who are compared versus polling. पोलिंग इज व्हेन यू, पोलिंग की एग्जांपल मैंने दी थी कि आपने कोई इंपॉर्टेंट मेडिसिन चाहिए, आप जाते हैं उसके पास मेडिकल स्टोर पे और पूछते हैं कि यार ये मेडिसिन आ गई है कि नहीं. तो पिछले दिनों में हैंड सैनिटाइजर नहीं मिल रहे थे, जब नया नया कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो आप जाके पूछते थे कि मुझे हैंड सैनिटाइजर है, वो कहते नहीं, शॉर्ट हो गए थे हैंड सैनिटाइजर. सो सैनिटाइजर आपका नहीं है, आप दो 2 घंटे बाद फिर जाते हैं और पूछते हैं सैनिटाइजर है या नहीं, वो कहते नहीं. तो दैट वुड बी पोलिंग.
तो आप कुछ अर्से के बाद रिपीट कर रहे हैं, अपनी अपनी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या अपनी इनपुट पूछ रहे हैं कि है कि नहीं. Versus that interrupts are like this, that you give your phone number to the shopkeeper. So whenever a hand sanitizer arrive in the shop, he can call you कि जी sanitizer आ गए हैं, आके जल्दी से ले जाएं. I have many very little quantity and they will be sold out soon. So whatever now here, whatever you are doing, you are eating your dinner, maybe you are sleeping, maybe you are driving to some place. You just stop whatever you are doing, you go to the shopkeeper, you get the hand sanitizer, and then you may be lecturing. I may be in lecture, मैं lecture दे रहा हूँ, मैं सबको कहता हूँ सो जाएं, और मैं जल्दी से जाके हैंड सैनिटाइजर लेके आता हूँ वापस, और फिर मैं क्लास को कहता हूँ जाग जाएं. उनको ये एहसास ही नहीं होता कि आई हैव बीन आउट ऑफ द क्लास. So interrupts work that way. So the main program, main task is lecturing. So this is the main task. So I go to interrupt. As a interrupt आती है, मैं interrupt service routine में चला जाता हूँ. Come back. So interrupts related are called interrupt uh, service routine. Service routine. These are interrupt service routine are called ISR. So these are processes run whenever there is an interrupt. This ISR, so they are provide interrupt. They are not called. You can call them, but usually they are not called. And this is a format. You cannot have anything here. You have this, there will be an error. They don't return anything. You can call, and how are they called? How are they called? That is related to the interrupt service routine. So processor has many sources of interrupts. Some interrupts are from the outside. So a change on the interrupt, a line, so for example, port B0, dot bit 0, that can be called an int 0. So whenever there is a transition from low to high, you can set this. कि आपने low to high पे transition interrupt करना है या high to low. So whenever there is a transition on this port, then this can invoke this ISR. Software में ये आप इसे कॉल नहीं कर रहे. That is the beauty of interrupts. You are not calling them in the software. When there is a transition from low to high, it automatically, whatever the processor is doing, वो लेक्चर दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो गेम प्ले हो रही है, आपने यहाँ पे कीबोर्ड हो सकता है लगाया हो कि जब भी कोई की मैं प्रेस करूं तो इंटरप्ट आनी चाहिए. अब वो की जो है ना, प्रोसेसर ये तो नहीं कर सकता कि अपने मेन के अंदर बार बार चेक करे आपने की प्रेस तो नहीं की, की प्रेस तो नहीं की, की प्रेस तो नहीं की. यहाँ पे आप जो है ना, वो मैंने कहा जैसे क्लास में भी बताया था, आई कैन हैव अ सेंसर दैट डिटेक्ट्स इफ देयर इज अ कार गोइंग ऑन अ रोड. कार बना देता हूँ यहाँ पे. कार जा रही है इस सड़क के ऊपर, ये आपका सेंसर लगा हुआ है. अच्छी बना दी है ना कार मैंने. तो कार इस सड़क पे जा रही है, पिछली पिछली भी बना देता हूँ. कार इस सड़क पे जा रही है, जब भी कार इस सेंसर के आगे से गुजरेगी, ये बिट हाई हो जाएगी. आपने किसी सड़क पे ट्रैफिक काउंट करना है, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि आप एक सेंसर लगाएं और उसको हर वक्त मॉनिटर करते रहें. गाड़ी हो सकता है 2 घंटे बाद एक गाड़ी गुजरनी, हो सकता है रात में कोई गाड़ी ना गुजरे, रात में 2 गाड़ियां पूरी रात गुजरे,
तो आप अगर आप अपने सीपीयू को कहते हैं कि इस पोर्ट बिट बिट 3 को हर वक्त चेक करो कि इफ पोर्ट बी डॉट बिट 3 मेरे, तो डू दिस। अब अगर ये मेन में डालेंगे तो ये तो जब गाड़ी नहीं होगी तो यू आर वेस्टिंग टू मच टाइम, दिस विल बी पोलिंग। आप गाड़ियों का काउंट, कार काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं, ये अगर आप मेन में डालेंगे तो दिस विल बी टू मच वेस्ट ऑफ टाइम। So that is what is uh, the the problem with the polling. So you have to though the interrupts have very efficient way of uh, dealing with asynchronous events, events that happens once in a while. Polling is very inefficient. Interrupts are an efficient way to deal with that. Remember, processor is running; it can be doing 1 million instruction per second, and to just to say that okay, do this all the time to the processor, uh, so you what you want to do is to keep processor away from doing some routine task of checking a port bit. So this basically this interrupt service routine provides a mechanism of parallel processing, multiple task creation. So this task runs along with main. So this is a separate task. So that gives rise to multitasking. Multitasking was not possible if there were no interrupts. So interrupt service routine runs whenever there is a task. So your main could be इधर कर देना यार, main could be, sorry, you write your interrupt program wide interrupt. Here you check if a port B int 0 interrupt flag equal to 1, तो क्या करना है, ये हमने सारा उसमें लेक्चर में भी पढ़ा था और आपके उसमें स्लाइड्स में भी दिया हुआ है। इफ इंटरप्ट वन फ्लैग इक्वल टू वन देन व्हाट टू डू एंड सो ऑन। So this is your major, this is your what you can big ISR, big ISR, big interrupt task, interrupt task. So in the main, you could be playing a game. Here something must change. Some count must change whenever there is a car comes here on port bit 0, interrupt 0 occur. Some count plus plus should be done. This is the shared resource between main and this. Here I can say simply say uh, display count on LCD. मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा, वो आपको पता कैसे करना है। While one डिस्प्ले काउंट ऑन LCD। अब आप कहेंगे कि काउंट तो इसमें तो काउंट चेंज ही नहीं हो रहा, तो डिस्प्ले पे तो एक ही काउंट आएगा, इधर मैंने लिखा हुआ है काउंट इक्वल टू 0।
तो काउंट तो जीरो है, तो काउंट कहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है? दिस इज वेयर मल्टीटास्किंग कम इन, दैट्स द concept of multitasking. Interrupts provide you inverts provides you a manner of doing multitasking. So you are here, you are displaying count again and again. But as soon as someone presses a key that is attached to the key, the processor goes into the interrupt service routine. It leaves wherever it is, whatever it is doing, that will be stopped. You can mean delay routine, delay underscore ms 1000. That time will be disturbed because delays are not uh, are interruptible. Delay routines are all interruptible. So this time will no more be 1000 millisecond because you are in delay routine. Hey, this is a software delay. So you are in the delay routine, interrupt occurs, it will go do this increment count and continue with the delay. जितनी इंस्ट्रक्शन इसमें एग्जीक्यूट होंगी वो इस डिले में ऐड हो जाएंगी. और अगर वैसे आप कभी ना करें, नेवर डू दिस. अगर आपने यहां भी लिख दिया है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन में भी लिख दिया डिले अंडरस्कोर मिली सेकेंड 1000, तो ये इस टास्क में से 1000 एक सेकंड के बाद जब बाहर आएगा तो ये वाली डिले 2 सेकंड की हो जाएगी. आपकी क्वेश्चन था तो डिले सारी जो है ना वो डिस्टर्ब्ड हो जाएंगी. आप इनको डिले को यहाँ पर आप क्या करते हैं, इंटरप्ट में आप पहले तो ये करते हैं कि मोस्टली आप क्या कर देते हैं, आप इंटरप्ट को डिसेबल कर देते हैं ताकि इंटरप्ट के अंदर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे. सो यू कैन डू दिस इन ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल बिट इक्वल टू 0 right in the beginning over here so that interrupts don't disturb you. Just before leaving the interrupt, you can then again you can make global and underscore bit equal to 1. और इसके अलावा भी जो आप इंटरप्ट जो है, अगर इंटरप्ट फ्लैग को दोबारा आप चाहते हैं कि जब इंटरप्ट आए तो मैं दोबारा इस रूटीन में आऊं, तो आप इसको भी दोबारा एनेबल बिट को 1 कर देते हैं. इंट 0 इनेबल इंटरप्ट इनेबल इक्वल टू 1 और 0, सॉरी फ्लैग सेट हो जाता है ना, तो आप इधर आए थे, आप इसको 0 कर देते हैं ताकि आप दोबारा इंटरप्ट हो सके, इंटरप्ट फ्लैग को 0 कर देते. So this is basically an brilliant way to do multitasking. हाँ, क्वेश्चन किसका था? जी सर, अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन है सर, और ये कहा था कि डिले इंटरप्ट के अंदर नहीं डालना. हाँ हाँ, नहीं डालते. वो किसी भी डिले वो तो किसी भी इंटरप्ट में के केस में डिले ना डाला जाए, उसकी जगह मेन प्रोग्राम में डाल दें डिले हमेशा. हमेशा मेन में ही डालते हैं डिले, लेकिन वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. डिलेज इन रियल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, डिलेज आर मोस्टली नॉट एडवाइजेबल. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है ना. आपने कोई काम 1 सेकंड के बाद करना है, आप टाइमर बेस्ड इंटरप्ट बनाते हैं, तो दैट टाइमर 0 ओवरफ्लो होगा. यही टाइमर की भी इसमें डाल दें, जब टाइमर ओवरफ्लो होगा टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग 1 हो जाएगा. तो IF मीन्स ओवरफ्लो और इंटरप्ट फ्लैग वो 1 होगा. आपका ये वाला जो है टाइमर का पार्ट आप चलाएं वहां पे जाके. सो दैट वे यू डोंट हैव टू डू समथिंग एवरी 1 मिली सेकेंड इन द सॉफ्टवेयर. अगर आप टाइमर बना लेते हैं जो 1 सेकंड के बाद ओवरफ्लो होता है, तो टाइमर की इंटरप्ट सर्विस रूटीन कब चलेगी? हर 1 सेकंड के बाद. तो वो डिले एमएस नहीं आपको डालेंगे जरूर, और वो बहुत एक्यूरेट होगी. दैट विल बी एक्यूरेट टू द क्लॉक, क्योंकि टाइमर तो अलग एक बंदा आपने रखा हुआ है काउंटिंग के लिए. वो आपकी सॉफ्टवेयर के साथ उसकी टाइमिंग तो डिस्टर्ब नहीं होती. टाइमर जो मर्जी, टाइमर अपने काम करता रहता है, आप जो मर्जी करें. सो टाइमर इज अनदर वे ऑफ डूइंग मल्टीटास्किंग. आप टाइमर एक मल्टीटास्क कर रहा है आपके लिए, वो काउंटिंग कर रहा है. वो जब 1 सेकंड होता है तो टाइमर इंटरप्ट्स योर मेन. You go into the timer interrupt service routine and you do something
एंड दैट विल बी हाईली एक्यूरेट। आपकी विंडोज वगैरह हैं, सब कुछ जो है ये टाइमर बेस्ड इंटरप्ट होती हैं। मल्टीटास्किंग ये टाइमर से ही करती हैं कि कौन सा टास्क करना है। तो ऐसे एवरी स्केड्यूलिंग पॉइंट इज वेयर दे कैन सी कि कौन सा टॉप हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, उसको चलाना है। दैट एवरी मिली सेकेंड इट चेक्स के किस टास्क को मैंने चलाना है। तो ये विंडोज ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल का सॉरी ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल का डिवाइस पे कहते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है? इंटरप्ट इनेबल का ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल आवाज GIE। कट रही है, जरा ऊंचा बोले बेटा। कौन है सर ये? सर उस्मान सलीम सर GIE। जीआई का ये टास्क है ना, मैंने बताया था कि प्रोसेसर के एक ही इंटरप्ट जो है ना, इंटरप्ट के अंदर प्रोसेसर के अंदर एक हार्डवेयर होती है जिसको इंटरप्ट हार्डवेयर कहते हैं। उसकी एक ही इंटरप्ट होती है इनपुट। आप आए नहीं ना क्लास में? नहीं सर। यार ऐसे ना किया करें, फिर ये टाइम दोबारा सारी चीजें रिपीट करनी पड़ जाती हैं, ये बड़ा फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। इसकी एक ही इंटरप्ट होती है और इसके साथ एक एंड गेट लगा होता है। या इधर को मुंह करके बनाता हूं, मैं उल्टा क्यों बना रहा हूँ? ये ना यार, ये प्रोसेसर की एक ही इंटरप्ट हुई हार्डवेयर होती है प्रोसेसर के अंदर। ये पूरा प्रोसेसर है, सीपीयू, माइक्रो कंट्रोलर जिसे कह लें, इसके अंदर ये इंटरप्ट की एक हार्डवेयर होती है। इसको सिर्फ एक ही इंटरप्ट जाती है, एक ही इंटरप्ट उसको जाती है। हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले वो देखता है कि इंटरप्ट फ्लैग जो है वो 1 है कि नहीं। हर एग्जीक्यूट होने से पहले अगर तो इंटरप्ट आई है और इसने इंटरप्ट फ्लैग को 1 कर दिया है, मास्टर इंटरप्ट फ्लैग को 1 कर दिया है, प्रोसेसर वो वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करता। हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले प्रोसेसर, आपके मेन के अंदर कोड लिखा हुआ है, ये वाला मेन के अंदर a इज इक्वल टू a प्लस बी, सी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये कोई कोड लिखा हुआ है। हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले, हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले वो देखता है कि ये हार्डवेयर में उसके होता है एक, देखो कि क्या इंटरप्ट तो नहीं आई। अगर इंटरप्ट आई है तो ये इस केस में उसने देखा, इस इंस्ट्रक्शन पे उसने देखा कि इंटरप्ट तो नहीं आई। यहाँ पे देखा, ये इंस्ट्रक्शन मैं लिख देता हूँ। आपने सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है x प्लस प्लस y प्लस प्लस काउंट इज इक्वल टू x प्लस वाई, कुछ किया हुआ है आपने, कुछ लिखा हुआ है, काउंट ना करेंगे, काउंट मैंने तो यूज किया। k इज इक्वल टू x प्लस वाई लिखा हुआ है आपने, थोड़ा जूम करना यार। तो आपने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, अब उसने ये y प्लस प्लस करना है, उससे पहले वो देखेगा कि इंटरप्ट फ्लैग तो नहीं 1। अगर इंटरप्ट फ्लैग 1 है तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसको आपने कॉल नहीं किया कहीं से भी, जो ही ये पार्ट है हर इंस्ट्रक्शन की एक लंबी काम करता है प्रोसेसर। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में थोड़े काम नहीं होते, वो ये भी चेक करते हैं कि इंटरप्ट तो नहीं फ्लैग 1। अगर इंटरप्ट फ्लैग 1 है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता, वो इंटरप्ट सर्विस ISR इंटरप्ट में चला जाता है, वापस वहां से वापस आता है। जैसे किसी फंक्शन से आप वापस आते हैं तो फंक्शन के बाद की इंटरप्ट एग्जीक्यूट होती है, तो ये इसके और इसके बीच में पूरी इंटरप्ट सर्विस रूटीन चल जाती है। वापस आता है फिर ये y प्लस प्लस करेगा। तो ये इंटरप्ट कैसे इसको पता लगता है कि मैंने इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जाना है? हर इंस्ट्रक्शन के बाद वो इंटरप्ट फ्लैग को देखता है। तो इंटरप्ट फ्लैग की पूरी एक बहुत ही बहुत बड़ी सी इसके साथ एक हार्डवेयर लगी होती है, एक एंड गेट लगा होता है जो ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल है, बिट है। अगर तो ये 0 है तो क्या होगा? हाँ भाई इस्मान, क्या होगा? सर वो फ्लैग 0 ही रहेगा। 0 ही रहेगा, इसका मतलब आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर सकेगा। इसके अलावा भी इससे पीछे भी कई हार्डवेयर होती है। एक तो और गेट होता है,
उसके अंदर कई सारे सोर्सेज होते हैं जिससे प्रोसेसर इंटरप्ट हो सकता है। उसमें एक इंटरप्ट है, फर्ज करें इंट जीरो के साथ फिर एंड गेट लगा होता है। एक तो ये कि पोर्ट बी जीरो पे हाई लो आएगा तो ये प्रोसेसर आर होगा, प्रोसेसर आर होगा तो ये इंटरप्ट आएगी। इंटरप्ट अगर ग्लोबल इंटरप्ट 1 है तो यहाँ पे 1 होगा। अगर तो और आया है, अगर यहाँ पे एक बस आई है तो ये यहाँ पे जाएगी 1 आएगी। ये जब यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे जाके ये इसके अंदर एक डी फ्लिप फ्लॉप होता है, वो सेट हो जाएगा। इंटरप्ट फ्लैग क्या है, बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप है, वो सेट हो जाता है। तो ये क्लॉक जाती है, ये 1 होता है इसका। बाकी सारे सोर्सेज अगर 0 है और गेट में तो ये 1 होगा। अगर ये 1 है तो ये क्लॉक यहाँ जाएगी, यहाँ पे जाके डी फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगी। लेकिन आप चाहते हैं कि पोर्ट बी भी आपको इंटरप्ट ना करे, तो आप क्या करते हैं, इसको भी, इसका भी उन्होंने आपको कंट्रोल दिया हुआ है। इसको मैस्किंग कहते हैं। इसका कंट्रोल क्या है, इंटरप्ट जीरो का क्या मैस्क है, एनेबल इंट जीरो इंटरप्ट इनेबल। आप इसको 0 कर दें, फिर ये 0 हो जाएगा, आपकी इंटरप्ट आगे जाएगी नहीं। इस तरह से आगे उन्होंने हर एक का इंडिविजुअल कंट्रोल भी दिया, एक मास्टर कंट्रोल दिया, एक हर एक का इंडिविजुअल कंट्रोल भी दिया हुआ है। तो इंटरप्ट की बड़ी एक कम्प्लेक्सिटी उन्होंने हार्डवेयर बनाई हुई है। और ये सारी चीजें जो जिन्होंने दिन रात जिन्होंने पिक प्रोग्रामिंग करके प्रोजेक्ट करने होते हैं, उनको तो बहुत इसका यूज नजर आता है, उन लोगों को यूज नजर आता है कि क्या क्या इनके यूज है। सो दीज आर डिफरेंट इंटरप्ट्स। इसके अलावा भी इंटरप्ट्स होती हैं जो कि प्रोसेसर के अंदर होती हैं। जब आप डिवाइड बाय 0 करें तो एक इंटरप्ट आ जाती है, जिसको उस केस में उसको इंटरप्टिंग फिर कहते हैं। वहां पे उसका नाम चेंज हो जाता है, वहां पे उसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा? हाँ जी, कोई बताएगा उसको? हैदर इरफान, डिवाइड बाय 0 करें तो कौन सी इंटरप्ट आती है? हारिस, यार ये कौन सी क्लास है भाई, बहुत ही लोग चुप ही रहते हैं, बोलते कोई नहीं। जब डिवाइडेड बाय 0 करें किसी एक एप्लीकेशन में, आपने एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय वाई लिख दिया, वाई गलती से 0 है, तो क्या क्या होगा? सर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आएगी। नहीं, उसका एक खास नाम होता है, उसका नाम होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अकर्स। तो इस तरह की जो है, आप ऐसे मेमोरी पॉइंटर आप ऐसा बना लेते हैं, आप कोई भी पॉइंटर बना सकते हैं, कोई ऐसा पॉइंटर आप बना जाते हैं कि पॉइंटर स्टार एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स, कोई रैंडम सा पॉइंटर बना लेते हैं। अगर वो पॉइंटर आपकी मेमोरी अलाउड मेमोरी एरिया में नहीं है, तो आप उसके प्रिविलेज नहीं, आप उस पॉइंटर में जाके डाटा को एक्सेस करने की, तो भी एक एरर आ जाएगी, वो होगी मेमोरी प्रोटेक्शन एरर। So these are exceptions, and your application can go no further. It has to stop. बिकॉज डिवाइड बाय 0 किया तो वेरिएबल z अनडिफाइंड हो गया। अब वेरिएबल z को आपने आगे यूज करना है, तो z तो पता ही नहीं क्या है। z इज इक्वल टू एक्स और y से आपने डिवाइड किया था, और z जो है अनडिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड कह लें। अब वो आगे आपने z को कहीं यूज करना है अगर, तो वो तो सॉफ्टवेयर नहीं चल सकती। सो देयर इज नो अदर वे टू डू, नथिंग कैन दैट एप्लीकेशन कैन डू एनी मोर। तो एप्लीकेशन हैज टू स्टॉप। So those are called exceptions that actually dead stop your application. But in that case also, a blue screen interrupt service routine runs that causes a blue screen। उसमें लिखा होता है कि ये वाली इंटरप्ट आई थी, और जो हार्डवेयर इंजीनियर है वो उसको देख के उनको पता लग जाता है कि कहाँ पे जाके किस जगह पे प्रॉब्लम आई है। जो डाटा ऊपर आता है इतना ज्यादा, वो बड़ा यूजफुल डाटा होता है, दैट टेल्स कि क्या हुआ है। So this is basically the scene with the interrupts. So interrupts are so important, and I would
lot of our rest of the course will be based on interrupts, timers and interrupts. This is all it is. टाइमर जो है वो दे प्रोवाइड मल्टीटास्किंग, हर सेकंड के बाद एक टास्क चलाना है, आप टाइमर को लोड कर दें तो हर एक सेकंड के बाद ओवरफ्लो हो, इंटरप्ट आएगी, आप वो टास्क चला लें। आपने घड़ी बनानी है, क्लॉक बनानी है, डिजिटल क्लॉक बनानी है, आपने कोई हर सेकंड के बाद कोई लाइट एलईडी ऑन ऑफ करनी है और आप चाहते हैं बिल्कुल प्रिसाइज हो, सॉफ्टवेयर डिले से वो काम नहीं हो सकता। तो डिले अंडरस्कोर एमएस या इस तरह की चीजों से काम नहीं होता क्योंकि देयर आर सॉफ्टवेयर डिलेज। ठीक है, सो दैट इज एनी मोर क्वेश्चन? आपके सामने ही है बाकी सारा कोड। मेरा ख्याल मैंने काफी चीजें रिपीट कर दी क्योंकि आप लोग लेक्चर में आना पसंद नहीं करते, तो लेक्चर में आए तो मुझे सारा कुछ रिपीट ना करना पड़े। बट एनीवे, कोर्स इज अलहदा, इज अ सेपरेट one unit, so no problem, I can repeat everything, but I have to be in a very compressed way. More detailed way is in the class, so I don't want to take much of your time, so please continue with your lab task. पहला task है square wave बनानी है 2 kilohertz की, so basically you have to use timer with interrupt. तो इसका थोड़ा सा बता देंगे कि टाइमर इंटरप्ट वो तो एक हाँ, ये टाइमर इंटरप्ट बनी हुई है, कोड लिखा हुआ है। और दूसरा टास्क ये कि आपने कोई बटन दबाएं तो इंटरप्ट आए, उसके लिए आपका किया इंटरप्ट नहीं आती, एक्सटर्नल इंटरप्ट नहीं होता है। अच्छा, एक्सटर्नल इंटरप्ट्स आर इन द नेक्स्ट लैब, in this lab there are only timer interrupts, so external interrupt we'll do in the next lab. So this is basically very simple timer interrupt. You have to have fixed time in some applications, so you use timers to do that. So that's it. करें अपना लेक्चर अटेंड करें। I presume there are some vivas also, so Maria and please get ready for the vivas. मिनाहिल है? मिनाहिल, आर यू देयर? जी सर। हाँ, मैंने आपको कहा था आप अपने नाम के साथ टीए लिख लें, रोल नंबर ना लिखें। मैं कर देती हूँ सर। उसे पता लग जाता है कि वो मिनाहिल काफी सारी यहाँ पे आजकल आ रही हैं, तो ठीक हो गया। ओके, थैंक यू।